Good morning to everyone. This is the chapter we will be starting today, redemption of debentures. Now we have already done redemption of preference shares. So you know what is redemption. Redemption means to repay. Redemption means to pay back. So, in the last chapter, we have done redemption of preference shares where we have seen how we have seen the accounting procedure, that how the company repays the preference shares of the company. What is the accounting procedure? In this chapter, we will see that how will the company redeem, that is repay the debentures of the company, repay the debentures of the company. So firstly, let us see the types, the main types. The redemption of debentures depends upon the type, that is whether the debenture is irredeemable or redeemable. Irredeemable means irredeemable debentures are not to be redeemed at all as long as the company exists. Irredeemable debentures are not redeemed as long as the company exists. These are repaid only when the company is liquidated or wound up, that is closed down. Then we have redeemable debentures. Redeemable debentures are to be redeemed or repaid at a specified future date. The date of redemption is mentioned on the debenture certificate, that when a certificate of ownership of debenture is issued to the debenture holders, the redemption date also is mentioned in it. Now, the amount. If debentures are to be redeemed at their face value, at the printed value, they are said to be redeemable at par. अगर प्रिंटेड वैल्यू में रिडेम्पशन होता है, फेस वैल्यू में रिडेम्पशन होता है, तो हम बोलते हैं रिडेम्पशन एट पार. रिडेम्पशन एट पार. If debentures are to be redeemed at an amount higher than their face value, मतलब अगर प्रिंटेड वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस में अगर रिडेम्पशन होगा, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर इज ऑफ 100 रुपीज़ और हम मोर देन 100 रुपीज़ में रिडेम्पशन करते हैं, देन इट इज नोन एज रिडेम्पशन एट प्रीमियम. रिडेम्पशन एट प्रीमियम. Such premium payable on redemption is a loss, capital loss for the company. Such premium, though payable on redemption, must be provided as a liability at a time of issue itself. देखो अगर हम प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे रिडेम्पशन में, so it's a loss, it's a capital loss and it should be shown as a liability. Then if the debentures are to be redeemed at an amount lower than their face value, दैट इज इफ 100 रुपीज का डिबेंचर है, हम 95 रुपीज में उसको पे करने वाले हैं, देन दे आर सेट टू बी रिडीमेबल एट अ डिस्काउंट. मीन्स प्रिंटेड वैल्यू या फेस वैल्यू से कम अमाउंट में अगर रिडेम्पशन होता है, एनी अमाउंट लेसर देन द प्रिंटेड वैल्यू और द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, इट इज नोन एज redemption at discount. Redemption at discount. So such discount is a capital profit for the company
However, such debentures are rarely issued in practice. मतलब ऐसा कौन होगा जो आप अगर कौन सा ऐसा there will be rarely ऐसा situation where debentures are redeemed at discount. मीन्स अगर आपको पता है कि आपको रिडेम्पशन में कम पैसा मिलने वाला है than the face value of the debenture, rarely such issue will be subscribed. मतलब कोई ऐसे डिबेंचर्स को खरीदेगा ही नहीं. रेयर ऐसा ये रेयर सिचुएशन है जहाँ पे रिडेम्पशन डिस्काउंट में, बिकॉज आपको जब डिबेंचर इशू होता है तभी आपको पता होता है रिडेम्पशन कैसे होने वाला है. जब इन द फ्यूचर जब पैसा वापस मिलेगा तो कितना पैसा वापस मिलेगा, दैट इज नोन टू द डिबेंचर होल्डर्स इन एडवांस. तो पब्लिक विल नॉट इन्वेस्ट इन सच डिबेंचर्स, will rarely invest in such debentures where redemption will be at discount. So इसके बाद one minute I will show you the redemption, like how the redemption of debentures can be done. That I will show you with the help of a table. So redemption of debentures, this is the table which I wanted to show you. 1 minute. So redemption of debenture, this is the table which I want to show you. So normally, if we talk about the redemption from the point of view of time, if we period time, we can see that lump sum. In first one, it may be lump sum. मतलब एक ही बार में, when the suppose the debenture is issued for 10 years. So at the end of the 10th year, lump sum में पैसा पे कर दिया. So ऐसे भी पे कर सकते हैं, या तो रिडेम्पशन कैन बी कैरीड आउट बाय इंस्टॉलमेंट पीरियोडिकली. मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर है, 10 करके हमने इंस्टॉलमेंट में पे किया बर्डन कम करने के लिए, या तो एनुअली थोड़ा थोड़ा हम पे करते जा रहे. सो सी रिडेम्पशन कैन बी रीपेड इधर लमसम में, इंस्टॉलमेंट में, एनुअली. So it depends how the company prefers to repay the debenture on the basis of the time. Next, on the basis of amount, तो पार में रिडेम्पशन हो सकता है. पार मीन्स 100 रुपीज का डिबेंचर है, मैंने क्या किया 100 रुपीज में ही रिडीम कर दिया, रीपे कर दिया, देन इट बिकम्स रिडेम्पशन एट पार. इट बिकम्स रिडेम्पशन एट पार. इसके बाद इफ द डिबेंचर is if the debenture is redeemable at a premium. Premium means if the face value of the debenture is 100 and we are paying, that the company is paying more than 100 rupees at the time of redemption, it is known as redemption at premium. And the third situation is redemption at discount. That means if the company is going to pay lesser amount as compared to the face value of the share, means अगर कंपनी शेयर का, आई एम वेरी सॉरी, डिबेंचर, अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 और रिडेम्पशन हो रहा है लेस देन 100 रुपीज, देन वी विल से दैट द रिडेम्पशन इज एट डिस्काउंट. एंड दिस इज अ वेरी रेयर सिचुएशन दैट द कंपनी विल रीपे एट अ डिस्काउंट. देन सोर्स, कहाँ से, from where, which source the company will provide for the redemption. So then if the company has two sources, one is
redemption out of capital, and the other one is redemption out of profit. So what is redemption out of capital and what is redemption out of profit, we will discuss later on also. But now redemption out of capital means that यहाँ पे the company will not set aside anything as profit को साइड में प्रोवाइड नहीं करते, that is reserves यूज नहीं करते when it is redemption out of capital. And when it is redemption out of profit, company क्या करेगा, company will keep us use the reserves and out of the profit or reserves of the company will uh, provide for the redemption. So there are two types here. Out of profit में दो types है, या तो company will create debenture redemption reserve, या तो कंपनी विल क्रिएट सिंकिंग फंड. तो यहाँ पे इसके हिसाब से हमारे पास दो मेथड होगा. एक तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करके रिडेम्पशन हो रहा है, सेकेंड सिंकिंग फंड क्रिएट करके रिडेम्पशन हो रहा है. सो दैट आर द टू वेज द कंपनी में स्टार्ट फॉर द कंपनी में गो फॉर द रिडेम्पशन. इसके अलावा what can happen, the company mode of discharge, तो कंपनी में पे आउट ऑफ कैश, तो रिडेम्पशन में कंपनी में पे आउट ऑफ कैश मतलब आपको रीपेमेंट में कैश देगा, या तो कंपनी में कन्वर्ट द डिबेंचर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, द कंपनी में कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू शेयर्स, इनटू डिबेंचर ऑफ higher rate of interest. So that way also redemption can take place. मतलब ड्यू डेट के टाइम पे आपको ऑप्शन रहेगा कि आप कैश में रिडेम्पशन चाहोगे या रिडेम्पशन यू रिक्वायर कैश, or you want to be you want to convert your debentures into equity shares, you want to convert your debentures into preference shares, you want to convert your debentures into higher rate of interest ka debentures. So this is in short कि रिडेम्पशन कैसे हो सकता है, ये पूरा का पूरा ये टेबल में दिया हुआ है, इसके ऊपर ही हम आगे स्टडी करेंगे. सो एवरीथिंग इज गिवन इन दिस टेबल. So with this, now what we can do, we can start, with the sum. We can start with the sum, one small sum. And उसके बाद और भी explanation है. If time permits, we will do in this lecture. Otherwise, we will do in the next lecture. So यहाँ पे redemption out of capital, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में हम क्या करते हैं, हम अलग से प्रॉफिट्स यूज नहीं करते, बट वी विल बी the debenture holders are paid out of cash or bank account. And this when we do the redemption out of capital, हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे वर्किंग के लिए जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम रिडेम्पशन के लिए पैसे यूज कर लेंगे. So let us do a small sum. So we will do this sum now. Bharat Bank Limited issued 50,000 15% debentures of rupees 1,000 each. किसी ने ये सम स्टार्ट करने से पहले what I want, I will discuss with the journal entries. Let us see the journal entries first.
journal entries. So the first one, amount payable on redemption. पेएबल है, पे नहीं किया है, मतलब ये ड्यू की एंट्री है. अमाउंट पेएबल ऑन रिडेम्पशन मीन्स अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन. सो उसमें क्या होगा, हमें यहाँ पे रिडेम्पशन डिबेंचर्स का है, तो डिबेंचर्स को कैंसल करना पड़ेगा. debentures account debit because debenture is a liability is credit balance, and जब इसको कैंसल करेंगे तो ये डेबिट में होगा. और अगर हम इनको प्रीमियम पे करने वाले हैं, अगर हम इनको प्रीमियम पे करने वाले हैं तो एक और चीज आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. ये ड्यू की एंट्री है. सो एक तो डिबेंचर्स कैंसल हो रहा है. अगर प्रीमियम देने वाले हैं तो प्रीमियम भी लिखेंगे बिकॉज प्रीमियम लॉस होगा. एक डिबेंचर का पैसा तो देंगे ही, साथ में वी विल ऑल्सो पे प्रीमियम. से ये सब किसको मिलेगा, ये सब मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स को. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. दिस इज द एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन. नेक्स्ट, वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे एक सेपरेटली आई विल गिव यू, if the redemption is at discount, if the redemption is at discount, डिस्काउंट में होगा तो डिबेंचर्स तो वैसे भी कैंसल होगा. और ये किसको पैसा मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को. डिबेंचर होल्डर्स को. और एक चीज, हम लोग डिबेंचर 100 रुपीज का है, पर डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ 99 रुपीज पे कर रहे. डिस्काउंट मीन्स व्हाट, दैट वी आर पेइंग लेस ऑन रिडेम्पशन. तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा. क्रेडिट और प्रॉफिट्स एंड गेन. सो टू प्रॉफिट ऑन redemption of डिबेंचर. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बताएंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, 1 रुपीज. और डिबेंचर तो फेस वैल्यू डिबेंचर का इस 100, एंड हम डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं 99 रुपीज. सो यहाँ पे इट विल बी द फेस वैल्यू यहाँ पे इट विल बी द it will be the नेट अमाउंट जो हम पे करने वाले. फेस वैल्यू डिस्काउंट माइनस करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का डिबेंचर्स है, बट वी आर पेइंग ओनली 99 रुपीज. सो 99 इधर आएगा, 1 रुपीज इधर आएगा, एंड 100 रुपीज विल कम इन द डिबेंचर्स अकाउंट. नेक्स्ट वन, amount paid on redemption.
पेमेंट के टाइम पे ये जो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट में है वो डेबिट में आ जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट एंड व्हाट विल गो, जब पे करेंगे तो टू कैश बैंक। सो दिस इज फॉर पेमेंट। जब रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल होता है तो हमें अलग से वी नी नॉट टू कीप असाइड, कोई रिजर्व क्रिएट नहीं करना है। जब प्रॉफिट से रिडेम्पशन करेंगे तब हमें अलग से रिजर्व यूज करते हैं। यहाँ पे कोई रिजर्व यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर डूइंग रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। नाउ लेट अस रीड दिस। Now let us read this sum. Bharat Bank Limited issued 50,000 15% debentures of rupees 1,000 each at rupees 952 per debenture. तो 1,000 रुपीज का डिबेंचर है, इशूड रुपीज 1,000। देखो उधर कम, हियर द Bharat Bank Limited issued 50,000 15% debentures of 1,000 each at rupees 952 per debenture. Now tell me, ये क्या है? ये इशू एट पार है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है? व्हाट इज इट? हमने 1,000 रुपीज का डिबेंचर 952 में इशू किया, तो वी कैन से दैट दिस डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट में इशू हुआ है, 48 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे। सो इसके बाद दे से द debentures are redeemable in 5 annual installments. The debentures are in redeemable in 5 annual installments of rupees 200 each. तो हमें क्या करना है, एनुअली ये डिबेंचर्स को रिडीम करना है। इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ discount in proportion to the amount of debenture finance usage over the various years. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये डिबेंचर्स का डिस्काउंट जो है वो हमें प्रपोजन 5 years के प्रपोजन में राइट ऑफ करना है, एक ही बार में राइट ऑफ नहीं करना है। अभी देखो व्हेन वी आर इशूइंग 1,000 रुपीज डिबेंचर एट 952, ये तो हमारे लिए लॉस हो गया। हम 1,000 का चीज 952 में दे रहे, तो वो उसको राइट ऑफ करते हैं हम, पर एक ही बार में डिस्काउंट को राइट ऑफ नहीं करेंगे, हम 5 years में राइट ऑफ करेंगे। एंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू अस, यू आर आस्क्ड टू prepare statement for राइट ऑफ ऑफ डिस्काउंट ओवर द 5 years पीरियड, कि हर एक ईयर में कितना डिस्काउंट राइट ऑफ होना चाहिए। दैट एंड पास अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज इन year 1 and year 2। तो year 1 and year 2 में जितना जर्नल एंट्री है वो हम फाइल करेंगे एंड वो हम कैलकुलेट करेंगे एंड अज्यूम दैट द रिडेम्पशन इज आउट ऑफ कैपिटल। ओके, हमें दो चीज करना है, journal or journal entries in the books of Bharat Bank Limited. Bharat Bank Limited. So let us prepare the columns also. Year के लिए year 1 year 2
तो वो इसी में, क्योंकि हमें डेट कुछ दिया नहीं है, सो हम सीरियल नंबर भी यूज कर सकते हैं ईयर 1 डाल के, एंड पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट. We let us, so here serial number, particulars, debit rupees, credit rupees. सो फर्स्टली हम ईयर 1 के लिए करना है. सो ईयर 1 में क्या हुआ, डिबेंचर्स इशू किया, डिबेंचर्स इशू किया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला, 50,000 into 952, इतना पैसा मिला. एंड एक और हमें लॉस हुआ है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हुआ, 50,000 का डिबेंचर हमने 48 रुपीज कम में इशू किया, तो हमने डिस्काउंट दिया डिबेंचर होल्डर्स को ना. क्या किया हमने, पब्लिक को क्या बोला, 1,000 रुपीज का डिबेंचर 952 में, मीन्स 48 का डिस्काउंट है, करेक्ट. तो ये करने से व्हाट गॉट क्रिएटेड, लाइबिलिटी. कौन सा लाइबिलिटी, 15% डिबेंचर्स का लाइबिलिटी. 15% डिबेंचर्स अकाउंट, 50,000 इंटू 100, कितना होता है, डिबेंचर तो 100 का ही है ना. हाउ मच इज इट कमिंग टू, 5 crores. And here how much is it coming to, 4 crores 76, 4 crores 76 lakh. Are you getting this amount, 4 crores 76 lakh. तो ये कितना आ रहा है, 224, that is 50,000 into 48 is coming to 24 lakhs, बराबर. तो इसके साथ we may say what narration we can give, being debentures issued, being debentures issued at a discount, being debentures issued at a discount. Now first entry हो गया. Now इसको हम लोग और फर्स्ट वन भी बोल सकते थे, ईयर 1 में फर्स्ट एंट्री. नाउ द सेकेंड एंट्री जो है उसमें व्हाट वी विल डू, ईयर एंड में, अभी नॉर्मली ईयर एंड में ही क्या होगा, ईयर एंड में आना चाहिए, पर यहाँ पे बिकॉज ईयर कुछ भी नहीं दिया, वी कांट से एनीथिंग, बट ईयर एंड में ये डिबेंचर पे, ये डिबेंचर, वो सब करने से पहले ना एक बार डिस्काउंट का देखते हैं. डिस्काउंट स्टेटमेंट शोइंग डिस्काउंट, क्योंकि हमसे एक और चीज पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्काउंट, स्टेटमेंट शोइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ. तो इसके लिए 24 लाख का जो डिबेंचर है, 24 लाख का जो डिबेंचर है, ये हमें 5 years में राइट ऑफ करना है. तो रुपीज 24 lakh we have is to be return of in 5 years.
और हमें प्रपोर्शन में करना है। तो एक रेशियो लेते हैं, फिफ्थ, फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। हमें ऐसे राइट ऑफ करना है। हमें क्या करना है, सो हमें ये रेशियो में क्या करना है, डिबेंचर्स को 5 years में, प्रपोर्शन बोला है ना, प्रपोर्शन मीन्स रेशियो में हमें 24 लाख को रेशियो में 5 years में राइट ऑफ करना है। तो 5, 4, 3, 2 एंड 1, मतलब 5 साल में हमें ऐसे राइट ऑफ करना है। तो टेल मी, इसका रेस को ये इसको कैसे फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे? 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 is how much? 5 plus 4 is 9 plus 3 is 12 plus 2 is 14 plus 1 is 15. तो 5/15 और दूसरा क्या होगा 4/15, तीसरा क्या होगा 3/15 and next one will be 2/15 and last one will be 1/15। ऐसे हमें ये 24 लाख है उसको ऐसे डिवाइड करना है। तो एवरी ईयर का आंसर बताओ, एवरी ईयर का आंसर बताओ कितना रहेगा। ईयर 1 में कितना डिस्काउंट रहेगा? 24 लाख इज द टोटल डिस्काउंट। 24 लाख इंटू 5/15 कितना आंसर आता है देखो, 24 lakh into 5 divided by 15. How much answer you are getting? How much answer you are getting? 24 lakh into 5 divided by 15. Are you getting 8 lakhs? तो फर्स्ट ईयर में 8 lakhs रहेगा। तो नाउ सेकेंड ईयर, में we want to reduce this space also। सेकेंड ईयर में 24 lakhs into 4 divided by 15। हमें बोला है ना क्वेश्चन में कितना 5 year पीरियड का जो डिस्काउंट राइट ऑफ होने वाला है वो बताने के लिए। कितना है 24 lakh into 4 divided by 15। How much are you getting? 6,40,000। Next one, year 3, 24 lakhs into 3 divided by 15. How much is it coming? Yes, correct. 4,80,000. And same way, year 4 को 24 lakhs into 2 divided by 15. कितना आ रहा है? करेक्ट 3,20,000। फिर लास्ट वाला ईयर 5 को 24 lakhs into 1 divided by 15, which is coming to 1,60,000। 1,60,000। सो अगर हम ये सबको ऐड करेंगे ना, अगर ये डिस्काउंट का सबको ऐड करेंगे 8 लाख, 6 लाख 40, 4 लाख 80, 3 लाख 20, तो आंसर होगा 24 लाख। तो जो टोटल है which will be equal to 24 lakhs। टोटल यही हमें देखो, ये 24 लाख को कैसे 5 ईयर में डिवाइड करना है वही हमें पूछा था, राइट ऑफ करना है। तो ऐसे करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा 15% का।
So interest is debit because we will be paying the interest. So debenture interest account, debenture interest account debit. How much is the interest? 5 crore पे 15% कितना रहेगा? 5 crore पे 15% will be how much? 5 crore का 15% we get 75 lakhs. We get 75 lakhs. तो इतना इंटरेस्ट पे करना है. 2 पे करेंगे तो व्हाट विल गो? कैश बैंक अकाउंट. So this is 75 lakh being interest paid at 15% per annum. इसके बाद हमें क्या करना है? ये जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट है ये दोनों को राइट ऑफ करना है. तो कहाँ राइट ऑफ करते? ये दोनों लॉसेस है. इंटरेस्ट पे करना भी नॉमिनल अकाउंट है एंड डिस्काउंट इशू करना वो भी राइट ऑफ करते. तो पीएनएल अकाउंट में ही करते हैं डेबिट साइड में बिकॉज दोनों एक्सपेंसेस है. तो कितना है ये देखो, डिस्काउंट ऑन इशू इज इन द डेबिट, लेकिन पूरा 24 लाख फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ नहीं करना है. कैन एनीवन टेल मी फर्स्ट ईयर में हमें कितना राइट ऑफ करना है? फर्स्ट ईयर में हमें पूरा 24 लाख राइट ऑफ नहीं करना है. फर्स्ट ईयर में हमें 8 लाख राइट ऑफ करना है. और हमने जो इंटरेस्ट पे किया वो भी पीएनएल अकाउंट में आएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट बोल के. डिवेंचर इंटरेस्ट कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट. तो इधर डेबिट में है, इसको कैंसल करेंगे तो ये क्रेडिट में आ जाएगा. हाउ मच इज द अमाउंट? 75 lakhs. दोनों को ऐड करो, हाउ मच यू विल गेट? पीएनएल अकाउंट में कितना आएगा? 83 lakhs. इसको बोलेंगे बीइंग above expenses, being expenses transferred, being expenses transferred. ये 1 साल का हो गया. नहीं, लेकिन 1 साल का अभी भी नहीं होगा बिकॉज हमें क्या करना है? एवरी ईयर हमें 200 रुपीज एनुअली पे करना है डिबेंचर्स का. तो डिबेंचर्स क्रेडिट में है, रिडीम करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिबेंचर क्रेडिट में है, उनको रिडीम करेंगे तो 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. कितना पे करना है? 50,000 इंटू 200. तो कितना होता है 50,000 इंटू 200? 50,000 इंटू 200 इज 1 crore. इसको पे करेंगे तो व्हाट विल गो टू कैश बैंक अकाउंट. being first installment of debentures paid off. तो डिबेंचर को क्वेश्चन मैंने ऐसे क्यों किया 200? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन 5 इंस्टॉलमेंट्स और ₹200 ईच. तो एवरी ईयर हमें क्या करना है? 5 साल में ये डिबेंचर को भी राइट ऑफ कर, ये इंटरेस्ट को भी राइट ऑफ करना है और डिबेंचर को भी राइट ऑफ करना है. ये क्वेश्चन में बोला. डिस्काउंट जो हमने 24 लाख का दिया है डिबेंचर होल्डर्स को, उसको भी 5 ईयर पीरियड में राइट ऑफ करना है.
एंड डिबेंचर को भी 5 इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है, 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच में राइट ऑफ करना है। तो ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल गो टू सेकेंड ईयर, ईयर 2 में इशू तो नहीं होगा, पर डिबेंचर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट एवरी ईयर पे करना पड़ेगा। सो डिबेंचर इंटरेस्ट हमें सिर्फ 2 इयर्स का ही पूछा है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अभी कितना बाकी है डिबेंचर का, सी देखो डिबेंचर हमने 200 रुपीज तो पे कर दिया, 5 करोड़ का डिबेंचर था, 5 करोड़ का डिबेंचर था, वो 5 करोड़ में हमने 1 करोड़ पे कर दिया। तो अभी कितना बचा, अभी कितना बचा, 5 करोड़ में 1 करोड़, डिबेंचर वॉज क्रेडिट में 5 करोड़, अभी डेबिट में 1 करोड़ आ गया। मतलब अभी जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो पे कर दिया डिबेंचर होल्डर उनको तो नहीं मिलेगा। तो 15% इंटरेस्ट हमें अभी 4 करोड़ पे करना है, 4 करोड़ पे 15% इज कमिंग टू हाउ मच, 60 lakhs। तो पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट, कैश बैंक अकाउंट। सो दिस इज 60 lakhs, इसको बोलेंगे बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ऑन बैलेंस अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। जो रिडीम कर दिया, पे कर दिया, उनको डिबेंचर अभी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 चीज ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सब लॉसेस हैं जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं। क्या है, एक तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और दूसरा ये जो इंटरेस्ट हमने पे किया वो भी कैंसल करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। इस साल का डिबेंचर इंटरेस्ट है 60 lakhs जो हमने पे किया, और सेकेंड ईयर का डिस्काउंट कितना था 6,40,000, तो 24 lakhs में सेकेंड ईयर में हम कितना करने वाले 6,40,000। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करो, हाउ मच यू विल गेट, दोनों को ऐड करने पे 66,40,000, इसको बोलेंगे बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड, बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। लास्ट में अभी क्या करना है, पे ऑफ करना है, पे करना है डिबेंचर्स को, तो 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू पे करेंगे तो व्हाट विल गो टू कैश बैंक अकाउंट। कितना पे करना है, हमें 200 रुपीज एवरी ईयर पे करना है, तो अभी हम पे करेंगे 50,000 डिबेंचर को, उनका सेकेंड 200 रुपीज, देखो 1,000 रुपीज का डिबेंचर्स है, हम ऐसा नहीं कि हम उस 50,000 में 5,000 डिबेंचर्स को पे किया, ऐसा नहीं, हम पूरा 50,000 डिबेंचर्स है, पर उसको 1,000 रुपीज एक साथ में नहीं दे रहे, हम उनको 200 करके 5 साल में पूरा पैसा चुका देंगे। तो 50,000 लोगों को अभी बाकी का 200 रुपीज मिल रहा है, तो इट इज अगेन इक्वल टू 1 करोड़। डिबेंच कंपनी को कितना फिर पे करना पड़ेगा, 1 करोड़। तो इसको बोलेंगे बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन 50,000
debentures repaid. With this sum is done because हमें 2 years का ही पूछा है, 3, 4 का नहीं, only year 1 and year 2. With this sum is done. Thank you very much everyone.